Hello everyone, welcome back to your science class. So students, in this video we are going to study about the chapter 6 life processes of class 10th science. आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस वो पढ़ने जा रहे हैं. Then we will study here the different processes which are necessary for the life. Before that, I would like to ask one question from you. How can you say that anything is alive? किस चीज़ को आप कह सकते हो कि ये लिविंग क्यों है? आप कह रहे हो कि plants are living. You are saying that animals are living. So why they are living? So they are living. You will tell that they are breathing, that's why they are living. They are growing, that's why they are living. So what's that? These are the life processes. These are the processes which are necessary to sustain life. जो life को जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिनकी अंदर अगर कोई भी कमी आती है, then the person becomes ill. These are known as the life processes. तो लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ. इन योर सिलेबस यू हैव टू स्टडी अबाउट द 4 लाइफ प्रोसेसेस. आपको जो पढ़नी है वो 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी है इन दिस चैप्टर. In plants as well as in animals, the first of the life process is nutrition. First of all, we have to talk about the nutrition, then respiration, after that transportation, then the last one is excretion. The last one is excretion. So we have to talk about the 4 life processes. 4 लाइफ प्रोसेसेस कौन सी हैं हमारी? The one is nutrition, second one is the respiration, the third one is transportation and the fourth one is excretion. ये चारों प्रोसेसेस हमें प्लांट्स में भी स्टडी करनी है एंड एनिमल्स में भी, बिकॉज द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स. प्लांट्स और एनिमल्स ही लिविंग थिंग्स होते हैं. सो टुडे वी शुड स्टार्ट न्यूट्रिशन. सो लेट्स बिगिन विथ So what is nutrition? Nutrition क्या होता है? Nutrition is the process of taking up nutrients. Nutrition क्या है? Nutrition is the process of taking up nutrients. You are taking proteins, you are taking carbohydrates, minerals, fats, vitamins and many more. These are the nutrients. The process of taking these nutrients and utilizing them to get energy is known as nutrition. जो हम खाना खा रहे हैं वो और उससे जो एनर्जी लेना है, they both are involved in the process of nutrition. So nutrition क्या हुआ? Intake of nutrients to get energy. Intake of nutrients to get energy. Energy के लिए. Then we have the different modes of nutrition. कुछ ऑर्गेनिज्म है किसी एक तरीके से न्यूट्रिशन करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म है दे विल हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के मोड्स क्या हैं? सो न्यूट्रिशन हैज द 2 मेन मोड्स. द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एक हुआ आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ मीन्स प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. हेटेरो मीन्स डिफरेंट और who depends on others, and trophic means again the preparation. So
Autotrophic is the mode of nutrition in which an organism can prepare its own food itself with the help of the raw materials from the outside environment. Autotrophic mode of nutrition वो nutrition होता है in which the organisms are capable of preparing their food themselves, जो अपना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फूड, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं. व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स? दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. अब आप कहेंगे कि यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर फूड बट इनसाइड द बॉडी. प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी के अंदर ही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं इनसाइड द लीव्स एंड द फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. बट ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जितने भी होते हैं सारे, ऑल द एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक बिकॉज दे डिपेंड on plants or other animals or other raw materials for their food. So that's why they are in the heterotrophic category. So heterotrophic mode of nutrition क्या है? The mode of nutrition in which an organism depends on other for its food. So these are the two modes of nutrition. Heterotrophic nutrition on the other hand is divided into three parts. Heterotrophic nutrition को हम 3 categories में divide करते हैं. First one is saprotrophic or saprophytic. The second one is parasitic and the third one is holozoic. एक होता है saprophytic, the one is parasitic and the other is the holozoic. सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक कौन होते हैं? सेप्रो मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. जो अपने खाने के लिए सड़ी गली डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे वो आपके सेप्रोट्रॉफिक कहलाए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल द बैक्टीरिया एंड सम एल्गी आर देयर विच fungi are there which depends on the dead organisms for their food. For example, we are having mushroom. Mushroom derives its food from the dead and decaying plants. So this is a kind of the saprotroph. वो saprotrophic होगी. We are having parasitic. Parasitic is a mode of nutrition in which an organism lives inside or on the body of other organism and derives its food from there. Parasitic में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह करके उसकी बॉडी से फूड ड्राइव किया जाता है. इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइटिक कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वी कॉल इट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग द मलेरियल पैरासाइट. मच्छर काटता है, मॉस्किटो बाइट, इट कॉजेज मलेरिया. तो वो जो मलेरियल पैरासाइट होता है it comes to our body part and from there he sucks the blood उसने वहाँ से लिया. वो blood जो है उसके लिए ज़रूरी है for the hatching of its egg. उस फीमेल मॉस्किटो जो है उसको अपने एग्स की हैचिंग के लिए blood चाहिए. so they suck the blood from the body of other organisms. ह्यूमन बींग से वो blood या अदर एनिमल से लेकर के, तो वो पैरासाइटिक है. वी आर हैविंग सम ऑर्गेनिज्म लाइक लीच होता है, वो बॉडी पर लग करके वहाँ से ड्राइव कर लेता है अपना फूड. लाइस होती है, सिर में जूं हो जाती है. व्हाट्स दैट? दैट्स ऑल्सो ड्राइविंग द फूड फ्रॉम आवर ब्लड. तो ये चीज़ पैरासाइट्स में आती है. प्लांट्स आर ऑल्सो हैविंग सम पैरासाइट्स लाइक द डोडो और अमरबेल. जो अमरबेल होती है वो क्या है? कस्क्यूटा. दैट इज डिराइविंग इट्स फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स. जो ग्रीन प्लांट्स हैं वहाँ पर वो जो कस्क्यूटा होती है और अमरबेल होती है दैट डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द अदर ग्रीन प्लांट्स बिकॉज इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल. देन वी हैव द होलोजोइक. थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिज्म consumes complex food and then converts into or break down it into the simpler form for the amount of energy he needs for the survival. So holozoic कौन सा न्यूट्रिशन हुआ? जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड लेगा और उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करेगा, तभी उसको उसकी एनर्जी मिलेगी. द एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक, द ऑर्गेनिज्म शोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ह्यूमन बींग्स. हम भी क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपना खाना ले रहे हैं. वी आर ईटिंग
राइस, वी आर ईटिंग चपातीज, वी आर ईटिंग बिस्किट्स, वी आर ईटिंग पल्सेस। तो ये दाल सब्जी ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इस फॉर्म से हमें सिंपलर में बदलना है। क्यों? क्योंकि राइस और रोटी जो हम ले रहे हैं दैट्स अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द शुगर और द ग्लूकोज अल्टीमेटली, तभी वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होगा और तभी हम उससे एनर्जी ले पाएंगे। सिमिलरली द प्रोटीन दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू द एमिनो एसिड्स एंड द फैट्स दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड्स। तो ये आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। सो वी विल स्टार्ट इट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है आपको अमीबा और ह्यूमन बींग्स दोनों में पढ़ना है एंड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वो आपको स्टडी करना है। सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक, इसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सो लेट्स स्टार्ट द होलोजोइक न्यूट्रिशन। To understand Holozoic nutrition, we must know about the steps of nutrition. Nutrition के कुछ steps होते हैं वो हमें देखने हैं पहले। सबसे पहले nutrition का step आता है ingestion. First of all, there is an ingestion of food. Food का ingest होना. Then we have the second step called digestion. दूसरा step आता है जिसको हम बोलते हैं digestion. The third step is there that is known as the absorption. Third step होता है हमारा absorption. Then we have the fourth step known as assimilation. Then we have the egestion. So these are the 5 processes or the steps which are involved in the process of the nutrition. हमें खाना खाना है हमें और खाना खा के एनर्जी लेनी है, that is involving all these 5 steps. The first step is ingestion. What's the meaning of ingestion? Ingestion means the intake of food. Food का intake, खाना खाना क्या हो गया आपका? Ingestion means the intake of food. What about digestion? Digestion means the complex food which we are eating needs to be converted into the simpler one. तो complex food का simple food में convert होना कहलाया जाता है digestion. Then what is absorption? The mixing of the digested food into the blood stream. जो food digest हो चुका है उसका blood stream में mix होना absorption कहलाया जाता है. Mixing digested food into the blood stream. Then we have the assimilation. Assimilation means the utilization of absorbed food by body cells. जितने भी body cells हैं वो सारी एनर्जीज यूटिलाइज कर लें जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड में है। पहले हमने फूड लिया, इनटेक ऑफ फूड, देन वी हैड द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर वन, देन दिस एब्जॉर्ब्ड फूड, this digested food get mixed into the blood, that is known as the absorbed food. Then we get the energy from the absorbed food, that is known as assimilation. Then we have egestion. In case anything is not digested here, is removed with the process of egestion. तो egestion क्या होता है? Removal of undigested food. Undigested food का removal. Removal of undigested food. So that is all about the processes of nutrition. Amoeba is a single cellular organism. Single cellular organism है amoeba. ये सारी processes amoeba का एक single cell करता है. Whereas in human beings, these processes are performed by the different organs. So let's take an example of amoeba and understand it in detail. So we have the nutrition in amoeba. See, nutrition in amoeba. Amoeba होता है ऐसा, it's having the pseudopodia or the false legs. Nucleus है इसका. There is a food. Food आता है. अमीबा के जो ये फोल्ड्स हैं स्किन में, दीज आर नोन एज द स्यूडोपोडिया. इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? सूडोपोडिया
पोडिया, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स, फॉल्स लेग्स, क्योंकि अमीबा के पास कोई जो है ऑर्गन नहीं है मूवमेंट के लिए, सो दैट्स व्हाई द मूवमेंट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सीडोपोडिया। देन वी हैव द फूड देयर, अमीबा का जो फूड होता है दैट इज एनगल्फ्ड बाय द सीडोपोडिया, ये जो सीडोपोडिया होते हैं इस फूड को ट्रैप कर लेते हैं एंड द फूड गोज इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस अमीबा। दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंजेशन। तो इंजेशन किसके थ्रू हो गया अमीबा में? इंजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सीडोपोडिया, फूड एंटर्स थ्रू द सीडोपोडिया। सेकेंड स्टेप आता है आपका डाइजेशन। इन अमीबा the food is entered and a food vacuole is formed there, वहाँ पर एक फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाता है और इसी फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है फ्रॉम द एंजाइम्स और द केमिकल्स एंटर्ड फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से आने वाले एंजाइम से फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा का फूड डाइजेस्ट हो जाता है। सो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस वे। तो हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा? इन अमीबा द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंटर्ड फ्रॉम द आउटसाइड। देन वी हैव द थर्ड स्टेप दैट इज एब्जॉर्प्शन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है डिफ्यूज आउट होने की वजह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मीन्स द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से, क्योंकि एक छोटा सा सिंगल सेल ही तो है ये, तो फूड डिफ्यूज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। Then we have the fourth one and the fourth one is assimilation. Assimilation में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अमीबा बड़ा बना के दिखाना है that amoeba is growing with the help of this absorbed food. Absorbed food सारा बॉडी में पार्ट में, पूरे पार्ट्स में ये जो है इसका साइटोप्लाज्म सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एब्जॉर्ब, तो इसी को ही बोला जाता है एसिमिलेशन। अमीबा इज ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड एंड इन केस द अमीबा इज हैविंग द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, देन व्हाट हैपेंस? द सेल मेम्ब्रेन गेट बर्स्ट, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ये बर्स्ट हो जाती है एंड फूड मूव्स, अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स आउटसाइड। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड किससे बाहर हो गया? विद द हेल्प ऑफ द बस्टिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन दिस वे अमीबा के अंदर आपकी पांचों प्रोसेसेस एक सिंगल सेल ने कर दी। सबसे पहले इंजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, देन डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंटर्ड फ्रॉम आउटसाइड, then absorption takes place with the help of diffusion, then assimilation takes place and the amoeba grows in size, then the undigested food is removed with the help of the bursting of cell membrane. इसकी cell membrane break हो जाती है, undigested food निकल जाता है, then again the ruptured membrane gets filled up. So in this way nutrition takes place in amoeba. Now let's talk about the nutrition in human beings. अब यही प्रोसेसेस आपको ह्यूमन बींग्स में स्टडी करनी है। ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं, ह्यूमन बींग्स में फर्स्ट स्टेप आता है इंजेशन एंड इंजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ इन द बकल कैविटी। ह्यूमन बींग्स में फूड या हम लोग जब फूड खाते हैं तो माउथ के थ्रू हमारी बकल कैविटी में चला जाता है। बकल कैविटी क्या है? द कैविटी इनसाइड योर माउथ, इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ। आपका पूरा इनर कैविटी जो है जहां पर आपके जॉज हैं, आपकी टंग है, वो रीजन बकल कैविटी कहलाया जाता है। माउथ इज जस्ट एन ओपनिंग, माउथ की ओपनिंग के थ्रू हम बकल कैविटी में अपना फूड एंटर कर देते हैं, इसे ही इंजेशन बोलते हैं। द सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। सेकेंड स्टेप डाइजेशन हो जाता है एंड डाइजेशन स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी इटसेल्फ। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है बकल कैविटी में। अब बकल कैविटी में क्या है?
इट्स हैविंग एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। हमारा जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, मुंह में जो सलाइवा निकलता है, दैट सलाइवा इज कंटेनिंग द एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज or the ptyalin. This salivary amylase converts the carbohydrate or the starch into the sugar maltose. हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही फूड एंटर होता है तो हम उस फूड को खाते हैं तो स्टार्च जितना भी होता है, रोटी है, चावल है, that gets converted into the sugar called maltose. एक शुगर होती है maltose, उसी में ही कन्वर्ट वो हो जाता है. You can call it a simple sugar also. इसको आप देख सकते हैं आप बिना किसी सब्जी के या बिना किसी और फ्लेवर के अगर आप रोटी या ब्रेड ऐसे खाएं तो यू विल फील दैट द रोटी और द चपाती इज कन्वर्टिंग इनटू अ शुगरी सब्सटेंस. आपको लगेगा कि वो मीठा हम कुछ खा रहे हैं, जबकि हम जो रोटी है वो फीकी है एकदम. जब हम उसको खाते हैं तो वो रोटी का स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, तो वो हमें स्वीट लगती है. दैट इज द डाइजेशन हेयर. सो बकल कैविटी में क्या होता है, स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सिंपल शुगर कॉल्ड माल्टोज. माल्टोज जो शुगर होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है. और कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज. तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना है. देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज और द सिंपल शुगर इन द बकल कैविटी. अब फूड पहुंच जाता है ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में. द फूड एंटर्स टू आवर स्टमक. सेकेंड जो डाइजेशन की प्रोसेस होनी है वो स्टमक में होनी है ईसोफेगस के थ्रू. पैरास्टाल्टिक मूवमेंट एक इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जहां पर डाइजेशन हो रहा है उस पूरी कैनाल में. देन फूड एंटर्स द स्टमक. स्टमक इज कंटेनिंग द गैस्ट्रिक जूस. स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस. दिस गैस्ट्रिक जूस कंटेन थ्री थिंग्स. इस गैस्ट्रिक जूस में होती हैं तीन चीजें. द फर्स्ट वन इज द HCl, द सेकेंड वन इज द एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड द थर्ड वन इज द म्यूकस विच इज बेसिक इन नेचर. तीन चीजें गैस्ट्रिक जूस में आपको मिलेंगी. वन इज HCl, second is the pepsin and the third one is the mucus. The function of HCl is, HCl का फंक्शन क्या होता है, HCl helps to kill the bacteria present in food. फूड के अंदर जो बैक्टीरिया आ जाते हैं HCl उनको किल करता है. HCl makes the food acidic. HCl फूड को एसिडिक बनाता है. और एसिडिक क्यों बनना है, क्योंकि जो एंजाइम है पेप्सिन वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है. द थर्ड वन इज HCl क्या करता है, तीसरा काम, it activates pepsin. So we have the three functions of HCl. It kills the bacteria of food, it creates the acidic medium and it also activates the pepsin. ये तीन फंक्शन आपको HCl के करने हैं. Then we have the pepsin. Pepsin is the enzyme which converts the protein into the simple protein. प्रोटीन को जो सिंपल प्रोटीन में ब्रेक करता है that is द पेप्सिन. तो पेप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है इनसाइड द स्टमक. देन वी हैव द म्यूकस. क्योंकि आपको पता है HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूट फॉर्म में भले ही वहां पर प्रेजेंट है स्टमक में, बट अगर HCl के इफेक्ट से इनर लाइनिंग हमारे स्टमक की डैमेज होने लगती है तो म्यूकस वहां होती है, म्यूकस इज रिलीज देयर. इट prevents the stomach from the harmful effects of the acid. एसिड के harmful effects से हमें म्यूकस जो है वो बचा लेती है. सो दीज आर अबाउट द स्टमक. देन द फूड एंटर्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक से फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. द थर्ड स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट रिसीव्स द सेक्रेशन फ्रॉम टू मेजर ग्लैंड्स. दो ग्लैंड्स हैं उनसे सेक्रेशन मिलेगी इसको. वन इज द पेंक्रियाज एंड अदर इज द लीवर. लीवर इज आवर लार्जेस्ट ग्लैंड. एक तो लीवर भी अपनी सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है एंड पेंक्रियाज ऑल्सो विच इज लाइंग बिलो द स्टमक. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हैज इट्स ओन जूस कॉल्ड द इंटेस्टिनल जूस. इसका खुद का इंटेस्टिनल जूस भी इसमें प्रेजेंट होता है. देन पेंक्रियाज गिव्स पेंक्रियाटिक जूस. पेंक्रियाज में प्रेजेंट होता है पेंक्रियाटिक जूस.
liver consists of the bile juice. Liver releases the bile juice. Bile juice liver रिलीज करता है, बट इट इज स्टोर्ड इनसाइड द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, बट जो फॉर्मेशन है बाइल जूस की, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द लिवर. लिवर produces the bile juice and the bile juice enters the small intestine through the bile duct and it is stored temporarily in the gallbladder. Then we have the pancreatic juice. Pancreatic juice contains 3 enzymes. pancreatic juice में 3 enzyme होते हैं, pancreatic amylase, trypsin and lipase. What is the function of the pancreatic amylase? Pancreatic amylase converts starch into sugar in the pancreas. Pancreas में और the small intestine, जहाँ पर pancreas से तो सिर्फ secretion जा रही है, small intestine में जो digestion करता है प्रोटीन का, that is the pancreatic amylase. The digestion of protein in a small intestine takes place with the help of trypsin and lipase is helpful in the digestion of emulsified fats. Bile juice क्या काम करते हैं? 2 important functions perform करता है bile juice. The first one is emulsification of fat. एक तो fat को ये emulsify करता है means fats के जो large molecule होते हैं उनको वो smaller molecules में break कर देता है. And the second one is creates alkaline medium for the food, makes the food alkaline. जो food यहाँ पे acidic हुआ था स्टमक में, अब वो उसको alkaline कर देगा, because यहाँ पे जो लाइपेज है वो alkaline नेचर पे काम कर रहा है, तो that's why, क्योंकि वो एक एसिड है, so that's why it's converted into an acidic medium. तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? पेंक्रियाटिक जूस होता है, मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और बाइल जूस मिलता है. बाइल जूस इमल्सिफाई करता है फैट्स को एंड मेक्स द फूड एल्कलाइन. पेंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं. पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्रिप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन, एंड लाइपेज विच डाइजेस्ट द इमल्सिफाइड फैट्स. सो दिस इज अबाउट द पेंक्रियाज इन द लिवर. देन आफ्टर दैट द इंटेस्टिनल जूस checks whether whole of the starch has been converted into glucose or not, all the protein has been converted into the amino acids or not, all the fats is converted into the fatty acids or not. तो intestinal juice का काम at last क्या हो जाता है? intestinal juice का काम होता है, it checks, intestinal juice क्या चेक करता है कि सारा स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है या नहीं, बिकॉज ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर. आपने देखा होगा कभी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपको ग्लूकोज दिया जा रहा है, क्यों? ग्लूकोज इज गेटिंग मिक्सड इनटू योर ब्लड इजीली. एकदम से इंस्टेंटली आपको एनर्जी चाहिए तो आप ग्लूकोज पी रहे हो, क्योंकि ग्लूकोज अल्टीमेट सोर्स है यहाँ पे एनर्जी की, और हम ग्लूकोज उसी फॉर्म में ले रहे हैं और ब्लड में एकदम से मिक्स हो रहा है. जबकि अगर आप खाना खाओगे तो आपका फूड पहले डाइजेस्ट होगा, देन यू विल गेट द ग्लूकोज फॉर द एनर्जी. तो यहाँ पे इसीलिए हमें, क्योंकि ग्लूकोज से ही एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है, जिससे हम अपने सारे वर्क कर पाते हैं. तो स्टार्च सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है या नहीं, प्रोटीन सारी अमीनो एसिड बन गई है या नहीं बनी है, तब ये काम कर देता है. And the fats has been converted into the fatty acids or not. Fats को ये fatty acids में convert कर देता. So that is about the intestinal juice. In this way the digestion has been completed in the small intestine. अब small intestine में ही कुछ finger like structures होते हैं which are known as villi. Villi क्या है? Finger like projections हैं और thread like structures हैं which increases the surface area of and increases the rate of absorption. वहीं से ही जो digested food है वो blood stream में absorb हो जाता है and our body cells get the energy and the process is known as the assimilation. उसको assimilation बोला जाता है. absorption villi के थ्रू होगा जो कि finger like projections हैं small intestine में, फिर assimilation हो जाएगा, हर body cell को energy मिल जाएगी, and the last one is egestion. egestion takes place with the help of the removal फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन. मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है रेक्टम, वहाँ पर स्टोर होता है, एंड
after the full storage of that waste, this waste is removed from the anus with the help of the anal sphincter, which are the muscles of the anus. In this way, the digestion takes place in the human beings and the process of nutrition is over in the human beings. So that's all for today. In our next video, we will talk about the nutrition in autotrophic plants. Till then, have a very wonderful day.